पूछो अनिल पूछो। आप आर्टिकल 44 की जिक्र करें सर, which is a directive principle of state policy and UCC is included in that. Are you seeking amendment of that? No, I am not seeking any amendment in that. It is there. But why are we forgetting what about those other 19 directive principles? Why don't you impose a ban on alcohol, please? Do it. Please do it. It is part of directive principle. Please ensure that the wealth of this country is divided equally. Our wealth is now 50%, if I'm not wrong, wealth is with 15, 20 individuals. That is also part of directive principle. There are so many directive principles. Why don't you implement that? Why don't you implement that? Why only you're fixed on 144? There are other directive principles. Where is your love for constitution? So your love for constitution is limited to one Article 44. And moreover, please understand, you cannot use Article 44 to take away my fundamental right. That is Article 25, 26 and 29. These are fundamental rights. I have a fundamental right to practice my religion. I have a fundamental right to practice my culture. I have a fundamental right to manage the affairs of my religion. How can you take away that? आज खत्म होगा, 14 को आखिरी तारीख है। हाँ, क्या ये नहीं एम नहीं है उसका एम क्या है? आप बोलता हूँ आपको। They have solicited views and ideas from public on the issue of UCC. खत्म, उतना ही है। अब उसमें अनेरी आप समझिए इस बात को, जो 14 जून को they have asked solicited views and ideas on the issue of UCC, उसमें क्या बोल रहे? The notification of law commission, सुनिए आप, does not put forth any proposal for comment, but merely refers back to the prior notification of 21st Law Commission, including particular consultation paper on reforms of August 31, 2018. उसका तो हम रेस्पॉन्स दे दिए, कुछ भी नहीं है उसमें। आप दो खाली तो दे रहे, आप बना के देना था हमारे को, ये है ये कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, bring about a loophole yet again for the minorities, for the service of the minorities. Now, Anand Marriage Act amendment was made in 2012, which amended the Anand Marriage Act of 1909. This amendment was introduced and as special and specific act to register marriage for Sikhs only. If UCC comes, this will go away. This act specifically recognizes Anand Karaj, the ritual of Sikhs, and allows for registration of marriages under the said act. चले जाएंगे वो. That is why the Shiromani Gurudwara Parbandhak Committee, I am thankful to them that they have opposed UCC. Delhi Chief Minister initially supported, but his own Chief Minister of Punjab said no. पंजाब के शाही इमाम है, उन्होंने कहा कि इस पर बेमतलब का जो है इस पर बात हो रही है, अभी तक तो ड्राफ्ट ही नहीं बना है, इस पर क्यों इतना? शाही इमाम साहब काबिल आदमी है, वो अपनी बात कर सकेंगे, उनको एक नाकाबिल आदमी को क्यों चाहिए राय? अभी ड्राफ्ट ही नहीं आया। अरे भाई मैडम, उनकी राय है, हम रिस्पेक्ट करते, उन काबिल आदमी है, बहुत काबिल आदमी है, वो अपनी राय रख सकते हैं, वो उसमें क्या है? आप मैं लिख के दे रहा हूँ ओपिनियन ये, इसलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, उसमें बुरी बात क्या है? नहीं, पिछले कुछ दिनों से इस बात को लेकर उन्होंने कहा कि हवा एक मचा रखा है जिस पर कुछ नहीं है। नहीं, ठीक है, वो बड़े मोहतरम आदमी है, हम एहतराम करते हैं उनका, हम अपनी राय दे रहे। हाँ, मैं क्या हूँ अभी? मेरा आइडेंटिटी क्या है अभी यहाँ पे? नहीं, आप सुनो, आप सुनिए, मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक जिम्मेदार हूँ, एमपी हूँ, मैं अपनी पार्टी की बात कर सकता हूँ। केसीआर साहब
मुस्लिम डेलीगेशन को ये एश्योरेंस दिए हैं कि वो यूसीसी की मुखालिफत करेंगे और उन्होंने ये बोले कि हम इस मीटिंग की इम्पोर्टेंस की वजह से वो बोले कि मैं अपने दोनों पार्टी के लीडर्स जो राज्यसभा लोकसभा उनको बुला लिया, मैं केशव राव साहब को और हमारे नामा नागेश्वर राव साहब को उन्होंने बुला के बिठाए और बोले कि देखो भाई क्या करना है। थर्डली केसीआर ये भी बोले कि मैं लाइक माइंडेड पार्टी से भी बात करूंगा और केसीआर साहब आप बोल रहे हो बाहर नहीं निकली बात, उन्होंने बोले आपके दोस्त को भी बात करो आप। तो मैं हो साहब जगन मेरा दोस्त है, मैं जगन से ही बात करता हूँ ऐसे ही बोले आपके बात जाके मिलता हूँ मैं, मेरे को बोले खाना लंच को असद भाई लंच करके बात करेंगे। मैं बहुत दिन से बोल रहे हूँ, अनफॉर्चुनेटली उनकी मसरूफियत मेरी मसरूफियत की वजह से नहीं जा सक रहा हूँ, बट मैं हमारे उनके पार्टी के एमपी मिथुन रेड्डी साहब से बात किया, मैं उनको कन्वे किया मैं मिथुन रेड्डी साहब के, सर आप प्लीज़ आपके लीडर को बोलो आप। उन्होंने बोले बिल्कुल वैसे साहब हम हमारे लीडर को बोलेंगे। तो ये मीटिंग में ये हुआ। अब आप लोग इतना वाई आर यू जंपिंग द गन?